ब्लास्टोसिस्ट। हमने ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में बात की थी। दैट द zygote which has formed as a result of fertilization is going to undergo several cleavage divisions. After cleavage divisions, it is going to form 2 blastomeres, 4, 8 and 16 and continue. So these blastomeres which have formed, these blastomere will be appearing as a mass of cells and it will be moving further in the fallopian tube. As it moves in the fallopian tube, the 16 cell condition that has formed is known as morula, which appears like a small mulberry. Now this morula further continues to undergo divisions and it results into formation of the mass of cells in which a group of cells are attached to one side of a complete hollow cavity like structure, which was known as the blastocyst. The outermost cells of the blastocyst were known as trophoblast, whereas the group of cells present within the trophoblast was known as inner cell mass. Outer to the inner cell mass will be a small fluid-filled cavity and this is known as blastocyst. This blastocyst has now reached the entrance of the uterus. So now is the time for the attachment of the blastocyst to the uterine wall. This attachment of blastocyst to the uterine wall is known as the process of implantation. This process is known as implantation. So what is implantation? First of all, we must mention that the attachment of blastocyst to the uterine wall is known as implantation. And the process of implantation will confirm the pregnancy. मतलब implantation अगर हुआ है तो अब हम कह सकते हैं that the female is pregnant. तो implantation जो है वो किसका होता है? ब्लास्टोसिस्ट का implantation होता है और कहाँ पे होता है? तो यूट्राइन वॉल जो है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है, वहां पे implantation हो जाता है ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट. अभी भी ब्लास्टोसिस्ट में जो बाहर के सेल्स हैं उन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है और अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट इज द इनर सेल मास. Now this process of implantation is going to take place at about 8th day of fertilization. So implantation is going to take place at nearly 8th day of fertilization. मतलब fertilization होने के 7th day तक ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस तक आ जाता है और अबाउट 8th और 9th डे को ये होता है कि अब ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से अटैच हो रहा है. सो दैट यूजुअली अकर्स ऑन द 8th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन. नाउ फॉर दिस इम्प्लांटेशन होना मतलब अटैच होना. तो अटैचमेंट के लिए द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स विल बी फॉर्मिंग टू डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ सेल्स. What will trophoblast form? Trophoblast will form two different layers of cells. So for this, we are mentioning that for the implantation, the trophoblast forms. What will trophoblast form? Two layers of cells. The first layer is known as syncytiotrophoblaст. अब syncytiotrophoblaст जो है, it is having non-distinct
cellular boundaries, non-distinct cellular boundaries। तो हम यहाँ पे एक और डायग्राम देख लेते हैं जो इससे पहले देखने को मिलेगा, राइट। ये है वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम, राइट। एंडोमेट्रियम वॉल है और यहाँ पे हमारे पास है ट्रोफोब्लास्ट जो अटैच होने के लिए अब रेडी है, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट जो अटैच होने के लिए रेडी है। ब्लास्टोसिस्ट में आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, तो यहाँ पे भी ट्रोफोब्लास्ट है। एंड along with this trophoblast there is one more group of cells which is called inner cell mass, right। ये स्ट्रक्चर के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, ये है यूटेराइन वॉल, राइट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट। तो क्या हुआ है यहाँ पे कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें जो इनर सेल मास रीजन होता है, ये इनर सेल मास विल बी वेरी क्लोज टू द यूट्राइन वॉल एंड इट विल बी अटैचिंग टू दिस रीजन एंड नाउ इट इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा। नाउ हमने ये बात कर ली कि एक लेयर जो है उसे कहा जाता है सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट, मतलब ये जो बाहर के ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं they will be forming a non-distinct layer of cells which will be penetrating in the uterine wall. It will be penetrating, ये जो non-distinct layer है cells का, ये penetrate होने वाला है into the endometrium layer और अंदर penetrate होने वाला ये non-distinct cells का जो boundary है उसे कहा जाता है सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट। What it is called? Synctiotrophoblast. The second layer that is forming, the second group of cells that are formed is called cytotrophoblast. And cytotrophoblast जो है, these are proper cellular layer। एक जो ये cellular layer है जो hमें synctiotrophoblast के पास देखने को मिल रहा है, this will be known as the cytotrophoblast. So cytotrophoblast, it is a distinct cell layer, a distinct cell layer between, किसके बीच में होगा? तो it will be present between the inner cell mass and synctiotrophoblast. Inner cell mass and synctiotrophoblast के बीच में ये जो cells हैं, this will be known as the cytotrophoblast. So there will be two distinct layers, एक जिनके बाउंड्री स्पेसिफिक नहीं है वो जो होगा synctiotrophoblast, और एक ऐसा लेयर है जिसपे सेल्स बहुत ही स्पेसिफिकली अरेंज्ड होते हैं बिटवीन इनर सेल मास एंड द सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट, उसे कहा जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये दो लेयर फॉर्म हो जाएंगे। अब ये दोनों लेयर फॉर्म हो जाने के बाद ये जो हुआ ये हो गया इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब अटैचमेंट अब होने लगा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ दीज टू layers, okay। Now one more important thing over here is that the inner cell mass also differentiates to form two layers of cell। The inner cell mass, यहाँ पे आप देख सकते हो कि inner cell mass है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि inner cell mass भी थोड़ा बहुत rearrange हो गया है, right। तो inner cell mass जो है वो थोड़ा जो यहाँ पे rearrange हो गया है उसमें क्या हुआ होगा that the inner cell mass will form again two layers, inner cell mass में से दो layers बन रहे cells के। The one layer is known as hypoblast, और हाइपोब्लास्ट जो होते हैं वो बाहर की तरफ जो फ्लैट क्यूबॉइडल सेल्स हैं इन्हें कहा जाता है हाइपोब्लास्ट।
So hypoblasts are flat cuboidal cells, a layer of flat cuboidal cells. ये बाहर जो दिख रहे हैं एकदम ही पतले जो सेल्स हैं जो बाहर की तरफ हैं, इन्हें कहा जाता है हाइपोब्लास्ट। और अंदर जो सेल्स हैं जो थोड़े बहुत कॉलम की तरह दिख रहे हैं, कोलमनार टॉल पिलर सेल्स जैसे दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है एपीब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट, दीज आर टॉल कॉलम लाइक सेल्स, टॉल कॉलम लाइक सेल्स, इन्हें क्या कहा जाता है एपीब्लास्ट। आप समझिए पहले क्या हुआ, ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है उसमें से दो लेयर फॉर्म हुए, ट्रोफोब्लास्ट में से दो लेयर फॉर्म हुए। एक हुआ नॉन डिस्टिंक्ट सेल्यूलर बाउंड्री बिना का एक लेयर है सिंटियोट्रोफोब्लास्ट, और एक स्पेसिफिक बाउंड्री वाले सेल्स हैं जो इनर सेल मास और सिंटियोट्रोफोब्लास्ट के बीच में है, उन्हें कहा जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। सेकेंडली इनर सेल मास जो था, दिस इनर सेल मास आल्सो गॉट डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म टू सेल्यूलर लेयर्स। जो अंदर जो बाहर की तरफ जो सेल्स हैं जो फ्लैट हैं और क्यूबॉइडल हैं, उन्हें कहा जाता है हाइपोब्लास्ट, और अंदर के जो सेल्स हैं इलोंगेटेड कॉलम की तरह जो सेल्स हैं, उन्हें कहा जाता है एपीब्लास्ट। और इन दोनों लेयर के बाद जो जगह बची है, इस जगह में होता है एमनियन, एमनियोटिक फ्लूइड जिसे कहा जाता है एमनियन, और ये बनाता है these two layers together form a structure which is called embryonic disc. It forms embryonic disc. मतलब हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट सेल्स जो यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, इन दोनों लेयर्स को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने एम्ब्रियोनिक डिस्क के बारे में बात की। अब हमें ये पता है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है दैट इज बीइंग सराउंडेड बाय जोना पेल्यूसिडा, राइट। ब्लास्टोसिस्ट के सराउंडिंग में क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा। अभी तक वो जोना पेल्यूसिडा कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है। So what is the role of zona pellucida? The zona pellucida is still attached to this blastocyst. For what reason? तो zona pellucida जो है, it is still attached to prevent the abnormal attachment of the blastocyst to an abnormal site in the uterus. यूट्रस जो होता है वहां पे ये अटैचमेंट, ये इम्प्लांटेशन होने वाला है। पर कई बार क्या होता है कि ये इम्प्लांटेशन सर्विक्स के बहुत ही नजदीक हो जाता है, या तो सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है, मतलब यूट्रस एंड्स इनटू सर्विक्स एंड सर्विक्स एंड्स इनटू वजाइना, तो कई बार इम्प्लांटेशन बहुत ही नीचे सर्विक्स की रीजन में हो जाता है और सर्विक्स जो है वहां पे ओपनिंग है। तो इन केसेस में द चांसेस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू फॉल ऑफ आर वेरी हाई। So in this case, the zona pellucida's function is to prevent the attachment of the blastocyst to any improper site in the uterus. So it prevents the attachment of blastocyst to abnormal site in the uterus, right। वापस से एक बार कह रही हूँ, जोना पेल्यूसिडा जो है वो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स को, मतलब ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स जो होते हैं वो थोड़े स्टिकी होते हैं ताकि वो यूट्रस में अटैच हो सके। तो वो जो स्टिकीनेस है उसे तब तक एक्सपोज नहीं करते जब तक ब्लास्टोसिस्ट कोई प्रॉपर पोजीशन में नहीं आ जाता, क्लोज टू आइदर फंडल रीजन में इम्प्लांट हो जाता है, या तो यूट्रस के एंटीरियर साइड पे, या तो यूट्रस के पोस्टीरियर साइड पे। ये तीनों जगह फेवरेबल है। पर अगर बहुत ही नीचे सर्विक्स के पास इम्प्लांटेशन हो रहा है तो वो इम्प्लांटेशन होने देगा
रुकेगा नहीं। सो जोना पेल्यूसिडा विल बी कवरिंग द ब्लास्टोसिस्ट till it reaches some proper site. Once it reaches anterior fundal or posterior region, what it will do? It will expose the sticky cells of the trophoblast, after which this process is going to occur. इसलिए ये जो प्रोसेस है सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट का बनना, साइटोट्रोफोब्लास्ट का बनना और इनर सेल मास का डिफरेंशिएट होना इनटू एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ये सब प्रोसेसेस कब होंगी? Once the blastocyst gets attached or once the zona pellucida shows a proper place for the attachment. इसके अलावा एक और ऐसे हार्मोन जो ट्रोफोब्लास्ट ही रिलीज करता है, जिसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG. HCG जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स रिलीज करते हैं और ये जो HCG है, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये रिप्लेस मतलब इसका काम बिल्कुल ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह काम है. इट्स रोल इज वेरी सिमिलर टू द रोल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. द HCG will be substituting the role of LH which is released by the pituitary. मतलब अब ये पिट्यूटरी को सिग्नल कर देगा कि अब आपको ज्यादा LH रिलीज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज LH का जो काम है वो HCG परफॉर्म कर लेता है. पहले तो LH जो है वो फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है और LH का रोल क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहे. और जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है उससे प्रेगनेंसी जो है वो पूरी मेंटेन रहती है, राइट, बिकॉज एंडोमेट्रियम थिक रहता है ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन. अब यही काम कौन कर लेता है? HCG. So HCG is actually substituting the role of the LH from the pituitary. And what does HCG do? HCG will be stimulating the corpus luteum, will be maintaining the corpus luteum in the ovary and allows it to release more and more progesterone. This progesterone is very much essential for maintaining the pregnancy throughout. Right? तो ये यहाँ पे रोल होता है HCG का. तो इम्प्लांटेशन के वक्त जोना पेल्यूसिडा is also very essential and human chorionic gonadotropin is also very essential. The presence of human chorionic gonadotropin will occur only after formation of synctiotrophoblast. इसीलिए ये जो HCG है उसका प्रॉपर लेवल अगर ब्लड में डिटेक्ट हो in a female, it can be used as a way to confirm the pregnancy, because in female blood HCG is found only during pregnancy. तो अगर ब्लड में HCG का कंपोनेंट मिल रहा है उसका मतलब ये हुआ है कि फीमेल में ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट हो चुका है. सो दैट इज अबाउट इम्प्लांटेशन. और एक चीज कि इम्प्लांटेशन होने के बाद अप टू 8th वीक एम्ब्रियो वर्ड यूज होता है. इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद अप टू 8th वीक इसे एम्ब्रियो कहा जाता है और 8th वीक के बाद इसे फीटस कहा जाता है. So the growing mass of cells is initially the embryo and after 8th week the term used for it is the fetus. So this was the overall process of implantation. Implantation होने के बाद अब ये जो हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट लेयर है सेल्स के, these layers will be giving rise to the next structure that is gastrula formation. मतलब अब यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन होगा जिसके एंड में हमें 3 जर्म लेयर्स मिलते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म